Assalamu alaikum. It's Abstract Online Support Program. Level is HSSC and your class is first year HSSC 1. Okay, today you will learn about what problems of quadratic equation or application of quadratic equation. Okay, so it means that whenever you just see in the past that to just solve the quadratic equation, how we can apply in the real life. Okay, so in exercise 4.10 you will see how we can relate to the daily life of the quadratic equation. Okay students, now you can see question number 11. The question number 11 is the area of a rectangular field is 297 square meter. मीन्स एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया गिवन है 297 स्क्वायर मीटर्स. ओके, had it been 3 meters longer and 1 meter shorter, the area would have been 3 square meter more. मतलब अगर जो लेंथ है वो अगर 3 मीटर अगर बड़ी हो जाए और जो उसकी जो ब्रेथ है वो अगर 1 मीटर छोटी हो जाए तो जो उसका एरिया है वो 3 मीटर ज़्यादा हो जाएगा. वुड हैव बीन 3 मीटर्स मोर. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. सो हमें वी नीड टू फाइंड the length of the rectangular and the breadth of the rectangular. So right now we don't know what is the value of the length and the breadth, so we can use the algebra. So let's suppose x be the length, this is x. Okay, x be the length and y be the breadth. Okay, now you can see this is the original rectangular field. This is x and this is y. Okay, x and y. Now this is the original field. Okay, original field. So देखो 3 मीटर x इसमें ज़्यादा बड़ा कर दिया और 1 मीटर जो है छोटा कर दिया. ठीक है, let x be the length and y be the breadth of rectangular field with area 297. That is, you know the formula of area of the rectangular field, length multiplied by breadth. If we suppose length is x then and breadth is y, so xy is equal to 297. This is equation number 1. इसको equation number 1 देकर नाम छोड़ दिया. ठीक है, now अब ये हमने एरिया इसमें बढ़ाया है. ठीक है, x प्लस 3 क्यों? क्योंकि अपने दोनों 3 मीटर हमने लॉन्गर किया है और had it been 3 meters longer and 1 meter short, और 1 मीटर डायमेंशन से इसको हमने शॉर्ट किया. मतलब ये था तो इसको थोड़ा छोटा कर दे 1 मीटर. ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास y है. इफ इट इज y तो 1 मीटर शॉर्ट कर देगा y माइनस 1. और ये अगर इफ दिस इज x सो दिस होल थिंग इज x प्लस c बिकॉज 3 मीटर लॉन्गर. सो आफ्टर चेंजिंग इन लेंथ एंड ब्रेथ, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस c दैट आई मेंशन and new breadth will be the y minus 1. Okay, now what would the area is? The area would have been 3 square meter more. मतलब जो भी एरिया था दैट इज 297, उसमें 3 स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, मींस 300 हो जाएगा. ठीक है, सो द न्यू एरिया विल बी 297 प्लस इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया? लेंथ मींस दिस लेंथ x plus 3 and breadth y minus 1 is equal to 300. Okay, now just multiply in the two brackets, x multiplied by y is and 3 multiplied by this. So after multiplication we have 297 xy. You know the value of xy. What is the value of xy? Xy is equal to 297. Okay, 297 minus x plus 3y minus 303. Okay, just put in the value. Okay, nothing else. And after the simplification, x minus x plus 3 was equal to minus 6 because 297 minus 303 is minus x. And just to make the value subject of x का subject बना लिया ऐसे, x is equal to 3y plus 6. इसको put कर देंगे equation 1 में. ठीक है, put in equation number 1. What is equation number? This is equation number 1. For the value of x की value क्या हो जाएगी? 3y minus 6 and y is same. 297 is same. After the multiplication, this is the thing, ये quadratic equation बन गया. Making the factors बना लिए. Y is equal to 11, y is equal to minus 9. Minus 9 is impossible because it is a length. Okay, so y is equal to 11 we pick and y is equal to 11 is put in the equation number 2. So we will have the
27 breadth. So length is 27 meter and breadth is 11 meter. Okay, this is the whole story of question number 11. So now we are moving towards next question. Okay, now students, okay, तो आज मैं आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्या होगा, जितना भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 किया है उसको अपने कंप्लीट करना है। और क्योंकि सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन आज खुद कराऊंगा, ठीक है। 11 से लेके 20 तक मैं आज खुद सारे कराऊंगा। नाउ सो प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 फॉर्म। Question number 12. The length of a rectangular piece of a paper exceeds its breadth 5 centimeter. Okay. If a strip 0.5 centimeter wide be cut all around the piece of paper, the area of the remaining part would be 500 square centimeter. Find its original dimension. क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं हम। The length of a rectangular piece of a paper. एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पीस था ये। ओके, सो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पीस था। The length of a rectangular piece exceeds its breadth 5 centimeter. तो ये हमारे पास x था और उसकी हमने 5 सेंटीमीटर एक्सीड कर दी ब्रेथ। If a strip 0.5 centimeter wide be cut all around the piece of paper, 0.5 जो है ना वो हमने कर दिया, काट दिया, ठीक है। अच्छा, 0.5 अगर ये काटेंगे, 0.5 काटेंगे तो ये 1 हो गया, तो ये फिर ये कितनी हो जाएगी, x+4 रह जाएगी, क्योंकि x+5 में से x+4 हो गई, ठीक है। एंड सेम एज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x-1, क्यों, क्योंकि 0.5 1, तो हमने 1 माइनस कर दिया x में से, तो ये x-1 हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया वो कितना हो जाएगा, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, आपको x और y निकालना है, ठीक है, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। अगर हमने ब्रेथ को y नहीं बोला, कुछ और बोला, तो हमें वो निकालना होगा। सो लेट x बी द ओरिजिनल ब्रेथ। हमने x को हमने क्या बोल दिया कि वो ओरिजिनल ब्रेथ है जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोली थी, ठीक है। एंड x+5 बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हमारे पास जो है वो कितना हो गया, क्योंकि +5 ऐड करना था ना, एक्सीड इट्स ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, तो x+5 हमारे पास क्या हो गया। आफ्टर कटिंग अ स्ट्रिप 0.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, सो ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगी, x-1, जैसे कि मैंने समझाया, और लेंथ क्या हो जाएगी x+4, क्योंकि 0.5 मतलब 1 कटेगा ना, 0.5 1 कटेगा, तो ये x+5 हो जाएगी, और ये x में से 1 अगर माइनस करें तो x-1। द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर हमें दिया हुआ है, वो कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 500। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन फैक्टर्स बन गए, x इक्वल टू -24 खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती लेंथ, ठीक है। तो x इक्वल टू 21 आ गई, और x+5 इक्वल टू 26, क्योंकि हमारे पास x हमारे पास क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ क्या है, x+5। तो लेंथ आ गई 21 और ब्रेथ क्या आ गई, 26। तो ये हमारे पास जो है ना आ गई हमारे पास आंसर 26 इज द लेंथ एंड ब्रेथ इज द 21। मीन्स इसको आप जो है ना वो क्या बोला हुआ है, ब्रेथ बोला हुआ था, तो ये x इज इक्वल टू ब्रेथ है, ठीक है, सॉरी, तो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है जिसके 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब वो 2 डिजिट कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। whose प्रोडक्ट इज 18, मतलब उन डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 और 3 है, 2 डिजिट है 63, तो 63 का 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। 36 है, आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। 92 है,
9 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो आंसर क्या है 18 आएगा, ठीक है ना। सो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18 if the digits are interchanged the new number becomes 27 less than the original number, find the number। ओके अच्छा, अब मेरे पास कितने नंबर का डिजिट है, 2 डिजिट, मतलब एक यूनिट प्लेस होगी, एक यूनिट प्लेस होगी और एक 10 प्लेस होगी। छोटी क्लास में पढ़ाया ना आपने यूनिट 10 100 1000, तो एक यूनिट प्लेस होगी, उसको आपने क्या बोल दिया, लेट वंस डिजिट इज एक्स, 2 डिजिट का नंबर है, और 10 डिजिट को आपने y बोल दिया, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दैट ओरिजिनल नंबर हमारे पास कैसे आएगा, a number consists of 2 digits whose product is 18 if the digits are interchanged, okay, if the digits are interchanged। देखो अब ये 10 डिजिट है ना, तो 10 डिजिट का मतलब हमने y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो भी इसका आंसर आए वो 10 डिजिट में आए, मतलब 10 के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया ओरिजिनल नंबर, क्या हो गया x प्लस 10y हो गया, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इंटरचेंजिंग द नंबर इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज करेंगे हम उसको, मतलब इसको y को हम यूनिट प्लेस बना दें x और x को हम 10 प्लेस बना दें, मतलब y प्लस 10x, द न्यू नंबर क्या हो जाएगा आफ्टर द इंटरचेंजिंग द पोजिशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास ये कि दो प्रोडक्ट है, मतलब दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 18 आ रहा है ना, मतलब x मल्टीप्लाई बाय y करें तो 18 आ रहा है, ये तो हमारे पास ये पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा गिवन दैट हमारे पास क्या है कि जो न्यू डिजिट है ना वो 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर है, गिवन दैट द न्यू नंबर बिकम 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। 27 लेस देन का मतलब अगर हमारे पास एक न्यू नंबर है, दैट इज ये न्यू नंबर है y प्लस 10x, ये बराबर होगा ओल्ड नंबर के, यानी कि x प्लस 10y, ये ओल्ड नंबर में से हम 27 लेस करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से सिंप्लीफाई करके आपने x और y का जो है ना वो मामला कर लिया, दैट इज ये बन गया x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। सो x का एक सब्जेक्ट बना लिया आपने y माइनस 3, इसको पुट कर दो आप 1 के अंदर, ये 1, तो आपके पास ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर बना लो, y के आंसर हमारे पास जो है ना वो क्या हो जाएगा, या तो 6 आ रहा है या तो -3 आ रहा है। अच्छा -3 हम क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में 18 है, पॉजिटिव है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर माइनस अगर होगा तो माइनस भी होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि माइनस अगर x y अगर 2 मल्टीप्लाई बाय -9 करूँगा तो -18 आएगा, तो माइनस को हमने जब भी रिजेक्ट कर दिया, तो 6 इज द y, इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर 2 के अंदर, तो 6 - 3 इज 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 63, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या हो गया x प्लस 10y, x की जगह पे 3 आ गया और 10, ये अब आप समझ में आ गया 10 क्यों लिखा था यहाँ पे मल्टीपल में, क्योंकि 10 y था 10 6 60, तो ये 10 बन गया, टेंस बन गया, मतलब 10 6 60 बन गई, दैट्स वाई 10 से मल्टीपल करके लिखा था, और 63 अब किन चेक 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो हमारे पास 18 आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, a number consists of 2 digits whose product is 14 if the digits are interchanged the resulting number will exceeds the original number by 45, find the number। अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था सारे में कराऊंगा। सेम क्वेश्चन है, x आ गया, y आ गया, ये पोजीशन आ गई, चेंज कर दिया, मल्टीपल आ गया, रिजल्टिंग नंबर एक्सीड करा 45 से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास न्यू नंबर है और यहाँ पे वहाँ पे हमने 27 किया था, यहाँ पे 45 हो जाएगा, सेम सिलसिला आ गया, ठीक है। और वही डिवाइड करके हमारे पास फैक्टर्स आ गए, नेगेटिव को कैंसिल कर दिया और ओरिजिनल ये आ गया हमारे पास 27, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 27, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, जब भी जरा सा थोड़ा सा तेज यहाँ पे समझाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 210 स्क्वायर मीटर्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया कितना है 210 स्क्वायर मीटर्स। If the hypotenuse is 37 मीटर लॉन्ग, ये 37 मीटर लॉन्ग हाइपोटेन्यूज है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड द एल्टीट्यूड। बेस और एल्टीट्यूड हमें निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी आएगा तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, आपने मैट्रिक में सीखा होगा। तो बेस को हमने एक्स सपोज कर लिया और एल्टीट्यूड मतलब हाइट को हमने वाई सपोज कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 210। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो या फिर आप इसको ऐसे कर लो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 2xy इज इक्वल टू 1369 माइनस 840। क्या किया यहाँ पे आपने इसको 2 को और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक। तो देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बन हो जाएगा, दैट्स वाई सब्ट्रैक्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 529, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड 529 का स्क्वायर रूट होता है 23, ठीक है। अच्छा, -23 को हमने निगलेक्ट कर दिया अभी, ठीक है, क्योंकि वही हम बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, सही है। सो ऐड करने पे हमें मिल रहा है ये, ठीक है। सो आफ्टर द थिंग एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 35 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 12। ये तो एक दूसरा मेथड है, इसका आसान मेथड एक और भी है, वो आप लोग खुद घर पे ट्राई करिएगा, टेक इट एज अ होमवर्क, कि ये 2x1 इक्वल टू 840 है ना, यहाँ से y की सब्जेक्ट बनाओ, तो y का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा 840 डिवाइड बाय 2x, 420 डिवाइड बाय x हो जाएगा, 420 डिवाइड बाय x को इसमें पुट कर दो और फिर आंसर निकाल लो, ठीक है। ये भी इसका मेथड है और दूसरा वाला भी मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1680 स्क्वायर मीटर इफ इट्स डायगोनल इज 58 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको मालूम है एक कोई भी दुनिया का रेक्टेंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है। तो ये y हो गई, ये x हो गई, 58 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेट लेंथ बी द रेक्टेंगल ऑफ x एंड ब्रेड्थ ऑफ द y। रेक्टेंगल का इसका एरिया दिया हुआ है हमें, कितना है 1680, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल में हमें दिया हुआ है 58। फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 1680, ओके। सो यू कैन सी हियर एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर आ गया 1680 के। अच्छा, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, सो 1680 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 3360। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे बिल्कुल अब सेम सिचुएशन बन गई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, यू कैन सी हियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई काम करने के लिए एक बंदा है, टेक्स 10 days मोर देन बी, एक 10 दिन ज़्यादा लेता है 20 है, ठीक है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 12 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू फिनिश इट अलोन, अगर बी अकेला बंदा काम करे, बी अकेला काम करे तो कितना टाइम लगाएगा वही काम ख़त्म करना है, ठीक है। हमें तो नहीं मालूम कि कितने डेज में करना है। So let B finishes alone his work in x days में कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 day में होगा तो 1/x हो जाएगा, वर्क डन बाय B alone in 1 day हो जाएगा, तो ये क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय alone in 1 day 1/x, वर्क डन B alone in 2 day 2/x, 3 day 3/x, ठीक है। तो 1 day के 1/x आएगा। अब work done by both A and B in 1 day, it should be what 1/x plus 10 and 1/x, this is 1/x,
On 1 upon x plus 10 क्यों आएगा? Because A takes 10 days more than B, so that's why 1 upon x plus 10 आ गया. ठीक है. Together they finish in 12 days. Means work done by both A and B in 1 day is 1 upon 12. ठीक है. 1 day की बात करें तो work done by ये तो 12 days में खत्म करें ना. अगर एक दिन में खत्म करेंगे तो वही अपॉन में आ जाएगा 1 upon 12. तो this means this 1 upon x plus 10 1 upon x. ये जो वर्क डन दोनों लोग कर रहे हैं ये क्या किस में कर रहे हैं? 12 दिन में खत्म करें. ये बाय द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. बोथ वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. ठीक है. इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, एलसीएम वगैरह लिया, सिंप्लीफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ब्ला ब्ला, ये देख लो. बस जैसे ही आपके पास कोऑर्डिनेशन मनी फैक्टर्स बना लिए और x इज इक्वल टू 20 माइनस 6 को आप जो है वो ख़त्म कर देंगे. डेज नेगेटिव नहीं हो सकते. सो x इज इक्वल टू 20 डेज, मतलब जब b बंदा है 20 दिन में काम खत्म करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. 17. टू कंप्लीट अ जॉब A and B take 4 days working together. A alone take twice as long as B finish same job. How long would? बिल्कुल सेम सवाल है. So you can see the solution. अब यहाँ पे 2x आ जाएगा क्योंकि ट्वाइस की बात की है. वहाँ पर जो 10 की बात की तो x plus 10 हुआ था. ठीक है. बिल्कुल सेम सोल्यूशन, सेम प्रोसेस. ओके. Now question number 19. An open box is to made from a square piece of tin by cutting a piece of 2 decimeter square from each corner. ठीक है. एक आपके हमारे पास एक ओपन बॉक्स है स्क्वायर पीस का. 2 डेसीमीटर जो है ना साइड कोने से काट लिया जस्ट लाइक दिस. ठीक है. एंड देन फोल्डिंग द साइड्स. फिर हमने क्या किया, कार्टन बना लिया, उसको साइड्स को हमने फोल्ड कर लिया. ठीक है. ये यूं उड़ जाएगा, ये यूं उड़ जाएगा जस्ट लाइक दिस शेप. ठीक है. ओके. अच्छा ये 4 माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से भी ये 2 माइनस हुआ, यहाँ से भी 2 माइनस हुआ, तो 2 और 2 माइनस हुआ तो ये पूरी कंप्लीट कितनी थी? x. तो x में से 4 माइनस होगा, x में से 4 x में से 4. ठीक है. ये शेप आ गई x माइनस 4 x माइनस 4. ठीक है. अब हमें करना क्या है? If the capacity of the box is to be 128 cubic decimeter, इसकी कैपेसिटी जो है ना वो 128 क्यूबिक डेसीमीटर है. तो आपको लाइन निकालनी है ई सूच की. Let x be the length of each side of the square piece of tin. By cutting 2 decimeter, length will be x minus 4 जैसे कि मैंने समझाया. न्यू लेंथ ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगी? x minus 4 जैसे कि मैंने बताया. और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी? x minus 4 क्योंकि हमारे पास स्क्वायर शेप थी वो. ठीक है. हाइट ऑफ द बॉक्स हमारे पास क्योंकि ये जब यहाँ से पीस उठेगा, ये पीस उठेगा, ये पीस उठेगा. ठीक है. तो ये कितनी हाइट है? ये कितनी हाइट है? ये 2 है. The height of the box is 2. So volume of the box क्वेश्चन में गिवन है 128 डेसीमीटर क्यूब. आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है ना? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. दिस इज क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सॉरी. तो ये हमारे पास क्यूबॉइड होगा. क्यों क्यूबॉइड होगा? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम नहीं है. ठीक है. सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. क्यूबॉइड का आ गया फॉर्मूला. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. इसको मल्टीप्लाई करके एक कॉर्डिक बना ली. ये कॉर्डिक बन गई. इसको सिंप्लीफाई कर लिया. स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस रूट लगेगा. x की वैल्यू प्लस में 8 आ गई और ये माइनस. x की वैल्यू 1 आ गई -4 और 1 आ गई 12. तो -4 तो इम्पॉसिबल है क्योंकि लेंथ है. तो लेंथ ऑफ द ईच साइड हमारे पास क्या आ गई? 12 डेसीमीटर. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. A man invests 1 lakh rupees in 2 companies. Sorry. A man invests 10 lakh rupees. You need 10, 100, 1000, 10,000 lakh. एक मिनट, मेरी तरह असल में आंखें ज़रा कमज़ोर हो रही हैं. A man invests. You need 10, 100, 1000, 10,000 lakh. 1 lakh in 2 companies. I was right at the first time. क्योंकि यहाँ पे 5 zeros है ना, 5 zeros में तो लैक होते हैं. ठीक है. In 2 companies his total profit is 5060.
if you receive 1980 from one company and at the rate 1% more than from other, find the amount of the each investment. अच्छा यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक में है उसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, इसमें ये स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो हमें इन्वेस्टमेंट हमने कितनी करनी पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट कंपनी इज एक्स रुपीज़, प्रॉफिट ट्रेड जो है ना उसको हमने आर सपोज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट कंपनी का प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट कंपनी 1980 गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप निकालते हो 5060 और इफ़ ही रिसीव, ये दिया हुआ है, इफ़ ही रिसीव 1980 फ्रॉम वन कंपनी, ठीक है, गिवन है। सो हमारे पास ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, अमाउंट यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 1980। सो एक्स की वैल्यू बना ली इन द फॉर्म ऑफ आर, ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ सेकंड, वैसे अपने इतना लंबा सवाल इतना बड़ा उसमें अभी तक आया नहीं बोर्ड में, लेकिन फिर सिर्फ नॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर अगर आप ना भी ध्यान दो तो कोई मसला नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। नाउ ये जो आपको गिवन है वो क्या है जनाब कि 30800 माइनस इज इक्वल टू किसके बराबर है 1000, यानी कि आपने बेसिकली क्या किया, इसको आपने यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है। ये आपने इक्वेशन 1 बना ली थी। इक्वेशन 1 के बाद इन्वेस्टमेंट इन सेकंड कंपनी जो की थी वो क्या थी 1 लाख में से एक्स माइनस कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट रेट क्या हो जाएगा आर प्लस 1%, क्योंकि 1% मोर वो कर रहा है। सेकंड कंपनी में से अगर हम निकालेंगे तो उसका ये आ गया 3080, क्योंकि 1980 फर्स्ट कंपनी का था, फार्मूला सेम लगेगा। ये हमारे पास इसको सिलसिला बन गया, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, एक्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आर, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस ये रह जाएगा और ये रह जाएगा। इसको फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन किया तो अकॉर्डिंग बन गई, फैक्टर्स बनाए, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के बाद आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफिकेशन किया और यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 44,000, ठीक है। और सेकंड कंपनी में क्या हो जाएगा 1 लाख में से ये फर्स्ट कंपनी का माइनस कर दे तो 56,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। इसको ज़रा से देख लेंगे, ठीक है। So I'm live through the WhatsApp group in maths period, so you can ask any question. Okay. Thank you for your attention. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.